A very good morning to all of you. Hope you all will fine at your home. Students, today we will do our worksheet work, page number 9. This work is of chapter 10. I left this work by mistake. But before today's work, we will quickly revise our yesterday's work that was on our worksheet, page number 19, writing work of chapter 11, describing feelings. In this work, we completed a story that has clues. It was the morning of my first day of school. ये मेरे स्कूल के पहले दिन की सुबह थी. I was feeling very excited. मैं बहुत ही उत्सुकता महसूस कर रहा था. First I had taken a bath. सबसे पहले मैंने नहाया. And then ate my breakfast. और इसके बाद मैंने अपना सुबह का नाश्ता किया या नाश्ता खाया. Next I put on. इसके बाद मैंने पहने my uniform and shoes. मेरी स्कूल की वर्दी और जूते. यानी उसके बाद मैंने अपनी स्कूल की वर्दी और जूते पहने. Then तब mom drives me to school. drives me to school. तब उसके बाद मुझे माँ स्कूल के लिए ले जाती हैं. There are many children in my class. मेरी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं. अब ये स्कूल का सीन है. The boy sitting next to me smiled. एक लड़का जो बिल्कुल मेरे बराबर में बैठा हुआ था, smiled, वो देखकर मुझे मुस्कुराया. And said hello. और उसने मुझसे हेलो कहा. Soon यानी जल्दी ही. We become friend. हम मित्र बन गए. Our teacher was warm and friendly. हमारी जो टीचर थी बहुत ही warm and friendly थी और मित्रवत थी. यानी वो बहुत उत्सुकता और अच्छे से हमसे मिली. She told us stories. उन्होंने हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाई. And showed us pictures of school. और स्कूल की पिक्चर्स यानी कई सारे चित्र भी दिखाए. Dad comes to pick me up. Dad यानी उसके पिता बता रहा है कि मेरे पापा मुझे स्कूल लेने आते हैं. I am so happy. मैं बहुत खुश हूँ. I will be going to school again tomorrow. मैं कल भी स्कूल जाने वाला हूँ. Now look at another work of your worksheet in page number 20. Question bank of chapter 11. Now look at question number 1. Where did Prakash go while the others were learning to dance? So the answer is while the others were learning to dance, Prakash ran away and hid from them. He watched them from behind a big thorny bush. Now look at question number 2. What happened to Prakash when he tried to imitate the dance steps? So the answer is when Prakash tried to practice jumping near a thorny bush, he crashed into a pile of thorny branches. Now look at question number B. Fill in the blanks by these clues. Now look at number 1. Prakash is a shy peacock. He is too shy to dance with the other peacocks. During the dance lessons, he hides behind a thorny bush. Now look at number 4. He tries to dance behind the bushes but falls down on the branches. He feels very sad because Chotu teases him. Now look at number 6. Suddenly he hears thunder and it begins to rain. Now look at number 7. At the sound of raindrops, he begins to dance. Now look at number 8. The others love the way he dances and join him. Now look at number 9. They are all friends now and Prakash never more feels shy. Now we will do today's work.
राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर और हिम टू योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज पार्टी। यानी नीचे दिया गया है एक लेटर, एक पत्र, जिसमें आपको आपके फ्रेंड को इनवाइट करना है यानी आमंत्रित करना है, क्योंकि योर एल्डर सिस्टर्स यानी आपकी बड़ी बहन की मैरिज की पार्टी है, यानी शादी का उत्सव है, जिसके लिए आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है यानी आमंत्रण भेजना है। सो स्टार्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। डियर, डियर, देन डियर, और यहाँ पर आपको अपनी फ्रेंड का नेम लिखना है। आप कोई भी फ्रेंड का नेम लिख सकते हैं, जैसे आई रोट हियर प्रिया। डियर प्रिया, हाउ आर यू? तुम कैसी हो? आई एम वेल, मैं अच्छी हूँ। यू वुड बी ग्लैड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी, दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड ऑन, कि मेरी बड़ी बहन की शादी या विवाह विल बी हेल्ड ऑन होने वाला है। डेट, अब आपको डेट लिखनी है। अब जैसे ये जनवरी का महीना चल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके आगे की डेट लिखेंगे, क्योंकि निमंत्रण भी हम अगर हमें किसी को देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 मंथ बिफोर दे सकते हैं। तो आई रोट हियर 2 February 2021। ओके, ऑल, देन क्लूज दिया गया है, अरेंजमेंट पार्टी दैट डे प्लेस 6 o'clock। तो ऑल अरेंजमेंट्स किस चीज़ की अरेंजमेंट? पार्टी। किस चीज़ की पार्टी है? मैरिज पार्टी है। तो ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ दिस मैरिज पार्टी, अब किस दिन, दैट डे किस दिन है वो हमें लिखना है। मान लीजिए कि 2 फरवरी को डे है ट्यूसडे, तो ऑन ट्यूसडे, इसके बाद कौन सा क्लू क्या दिया गया है? प्लेस। अब हमें यहाँ पर प्लेस का नेम लिखना है। एट, अब किस जगह पर आपकी बहन की शादी फिक्स हुई है उस प्लेस का नेम लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं लिखती हूँ हैप्पी गार्डन, देन टाइम क्या लिखना है? एट 6 o'clock। तो हम यहाँ लिखेंगे एट 6 o'clock, CLOCK क्लॉक। ओके, देन इसमें क्या दिया गया आगे? आई वुड बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी, इफ़ यू आर प्रेजेंट, अगर तुम उपस्थित होती हो, ऑन द ओकेजन, इस उत्सव पे, अलॉन्ग विद योर फैमिली, अपने परिवार के साथ। यानी तुम अगर अपने परिवार के साथ इस उत्सव पर मौजूद होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। होप टू सी यू एट द पार्टी, इस उत्सव में तुम्हें देखने की आशा के साथ। अब बाद में क्या दिया है? योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारी प्यारी मित्र। अब यहाँ पर आपको किसका नेम लिखना है? आपका खुद का नेम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका नेम है माही, तो हमने यहाँ लिख दिया माही। ओके, आपके समझ में आ रहा है? यहाँ पर लेटर दिया गया है और इनको क्लूज की सहायता से हमने इसको फिलअप किया है। यू विल डू दिस वर्क ऑन योर वर्कशीट, पेज नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 106, check post 3. Now look at question number A. Match the words in A with the words that mean the same in B. यानी यहाँ A कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको इनकी सेम मीनिंग B में जो दी गई है उनसे मैच करना है। जैसे गैदर, गैदर मीन्स इकट्ठा करना, तो इसकी सेम मीनिंग क्या होगी? कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स भी इकट्ठा करना, तो इसकी सेम मीनिंग क्या है? ई। ओके, नाउ लुक एट नंबर 2, रश, रश मीन्स जल्दी,
और इसकी सेम मीनिंग क्या है? डी मीन्स हरी, यानी इसके मीन्स भी जल्दी होता है। नाउ लुक एट नंबर 3 वॉयलेट। वॉयलेट मीन्स बैगनी कलर और इसका सेम मीनिंग क्या है? डी सी यानी पर्पल। सो राइट हियर सी। नेक्स्ट इज टम्बलिंग। टम्बलिंग मीन्स गिरना और फॉल मीन्स भी गिरना, तो इसकी सेम मीनिंग किससे मैच होगी? ए से। नाउ फिफ्थ वन इज स्पिन। स्पिन मीन्स घूमना और इसकी सेम मीनिंग क्या है? टर्न यानी घूमना, तो इसके सामने कौन सा ऑप्शन लिखेंगे? बी। नाउ अगर हम इसको चाहें तो इनको इनके ऑप्शन के साथ मैच भी कर सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी। राइट द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स, यानी ये जो वर्ड्स दिए गए हैं हमें इनका अपोजिट यानी उल्टा अर्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोम, लिखना है। जैसे लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स लंबा, तो इसका उल्टा क्या हुआ? शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स छोटा, SHORT, शॉर्ट। सॉरी, यहाँ फर्स्ट लेटर हमारा स्मॉल दिया गया है, तो हम यहाँ पर भी स्मॉल अल्फ़ाबेट में ही लिखेंगे। नाउ इट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ओल्ड। ओल्ड मीन्स पुराना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? न्यू मीन्स नया, NEW, न्यू। थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर और इसका अपोजिट क्या होगा? वीक यानी कमजोर, WEAK, वीक। फोर्थ वन इज बॉटम। बॉटम मीन्स होता है तली यानी बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, एंड इट्स अपोजिट इट्स टॉप, TOP, टॉप यानी सबसे ऊपर का हिस्सा। नाउ लुक एट नंबर 5 रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स गलत, तो इसका अपोजिट क्या होगा? राइट यानी RIGHT, राइट। नाउ लुक एट नंबर 6 नॉइजी। नॉइजी मीन्स शोरयुक्त, यहाँ पर जहाँ पर बहुत शोर होता है, और शोर का इसका अपोजिट क्या होगा? क्वाइट यानी शांत, QUIET, क्वाइट। नाउ लुक एट another वर्क। Complete these sentences with the correct words from the brackets, यानी इन sentences के blanks को हमें complete करना है, पूरा करना है, बट किसकी सहायता से? ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं इनकी सहायता से। Now look at number 1. They chose dash curtains for their windows. उन्होंने चुने कर्टेन्स यानी पर्दे फॉर देयर विंडोज, अपनी खिड़कियों के लिए। तो क्या कलर आएगा? ब्लू। ब्लू मीन्स नीला और ब्लू मीन्स होता है फूकना, तो व्हाट विल कम हियर? हियर कम ब्लू, तो राइट हियर BLUE, ब्लू। नाउ लुक एट नंबर 2. मे आई हैव अ डैश ऑफ दैट केक, और ब्रैकेट में दिया है पीस, PIECE, पीस यानी किसी चीज़ का हिस्सा या टुकड़ा, और PEACE, पीस यानी शांति। तो मे आई हैव अ, क्या आएगा यहाँ पर? पीस ऑफ दैट केक। क्या करिए कि क्या मैं इस केक का टुकड़ा ले सकती हूँ? PIECE, पीस। Now look at number 3. The room was filled with a pleasant dash from the bunch of roses. रूम यानी कमरा, was filled यानी भरा हुआ था, with the pleasant, बहुत एक सुखदाई के साथ। क्या थी सुखदाई? फ्रॉम द बंच ऑफ रोजेस यानी गुलाब के गुच्छों से। अब ब्रैकेट में दिया है SENT, सेंट यानी भेजना, और SENT, सेंट यानी सुगंध। तो क्या कह रहा है? गुलाब के किन बंचेस से कमरा सुखदाई भरा हुआ है? यानी सेंट, यानी SCENT, सेंट यानी गुलाब के सुखदाई सुगंध से कमरा भरा हुआ था। Now look at number 4. She likes writing on lined paper, यानी लाइन वाले पेपर पर उसे लिखना पसंद है। एंड ड्राइंग ऑन, और ड्राइंग किस पर करना पसंद है? किस पेपर पे? ब्रैकेट में दिया है PLAIN, प्लेन यानी सादा,
PLANE प्लेन यानी जहाज। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, कौन सा पेपर होगा, जहाज कागज थोड़ी होगा, प्लेन पेपर होगा यानी सादे कागज। तो वी विल राइट हियर PLAIN प्लेन। नाउ लुक एट नंबर 5 सेंटेंस। दे हैव इनवाइटेड अस टू, उन्होंने हमें आमंत्रित किया है, डैश हाउस दिस संडे, घर पे इस रविवार को। तो ब्रैकेट में देखेंगे THEIR देयर मीन्स अपने, और THERE देयर मीन्स वहाँ। तो दे हैव इनवाइटेड, उन्होंने किसके घर पे इनवाइट किया, अपने घर में। हमको अगर किसी को आमंत्रित करना है तो हम अपने घर में करेंगे ना, कहीं और तो करेंगे नहीं। तो देयर मीन्स वहाँ होता है, और इस देयर मीन्स होता है अपने, यानी दे के साथ इस देयर का यूज हम करते हैं। तो वी विल राइट हियर THEIR देयर। नाउ लुक एट नंबर 6 सेंटेंस। मदर हग्ड मी, हग्ड मीन्स गले लगाया, माँ ने मुझे गले लगाया, व्हेन आई, जब मैं, डैश द स्पेलिंग कॉम्पिटिशन, यानी स्पेलिंग का कॉम्पिटिशन। तो क्या किया स्पेलिंग कॉम्पिटिशन में हमने, कि माँ ने मुझे गले लगाया, ONE वन यानी एक, और WON वॉन यानी जीतना। तो स्पेलिंग कॉम्पिटिशन जीता, तभी तो माँ ने मुझे गले लगाया। सो वी विल राइट हियर WON वॉन। This work is on page number 106. You will do this page in very beautiful handwriting. Till then, our next video. Goodbye, everyone.